السلام علیکم میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے تمام لوگ سیدھے سادے تھے مگر بیچارے تھے بہت غریب۔ ان کی غربت کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کاہل اور آرام پسند تھے اور اپنا اپنا کام محنت اور دل لگا کر نہیں کرتے تھے۔ دل چاہا تو کام پر چلے گئے، نہ چاہا تو نہ گئے۔ انہیں گاؤں کے چوراہوں میں درختوں کے چھاؤں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کام سے زیادہ ان کا دل میلوں ٹھیلوں میں لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کی عادتوں کی وجہ سے انہیں محنت و مزدوری کے زیادہ پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس گاؤں میں رحمت نامی ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کی ایک بڑی سی حویلی تھی اور اس کے بہت سے نوکر چاکر بھی تھے۔ اس حویلی میں وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ بڑے ٹھاٹھ سے رہتا تھا۔ وہ نہایت لالچی، مکار اور خود غرض انسان تھا۔ اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں مگر وہ ان پر کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا۔ اب ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وہ کھیتی باڑی بھی نہیں کرتا تھا تو اس کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی کہ وہ گاؤں کا سب سے امیر کبیر شخص بن گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گاؤں کے غریب ضرورت مند لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ فرض کرو اس نے کسی کو 500 روپے ادھار دیے، ان 500 روپے پر وہ ہر ماہ ان سے اتنا زیادہ سود لیتا تھا کہ اصل رقم جوں کی توں رہتی تھی اور قرض دار بیچارے پوری عمر سود ہی چکاتے رہتے تھے۔ سود کو تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر اس کے باوجود یہ کام وہ کرتا تھا اور ایک مقرر مدت کے بعد اس سود کی شکل میں بہت سارے روپے مل جاتے تھے۔ جو لوگ اس کی سود کی رقم دینے میں ناکام رہتے انہیں اس کے کارندے ہنٹروں سے پیٹا کرتے تھے۔ گاؤں کا کوئی شخص بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا کیونکہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے، تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف جل تھل یکساں ہو گیا تھا۔ کئی دن سے جاری بارش تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بونا بھیگتا ہوا اپنے چھوٹے سے خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سرخ قمیض، نیلا پیجامہ، پیلے رنگ کی لمبوتری ٹوپی اور پیروں میں نوکیلے رنگ برنگے لانگ جوتے تھے۔ اس نے سوچا جب تک بارشوں کا موسم ختم نہیں ہو جاتا وہ کسی سرائے میں ٹھہر جائے گا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا جو بہت دور پرستان میں تھا اور بارشوں میں سفر کرنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ کسی سرائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ اس نے بہت سارے لوگوں کا جمگھٹا دیکھا۔ شاید وہ گاؤں کے چوپال تھی۔ بہت سارے لوگ ایک گھیرے کی شکل میں وہاں کھڑے تھے۔ بونا بھی حال احوال معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا رحمت کے کارندوں نے چند غریب گاؤں والوں کو پکڑ رکھا ہے اور انہیں ہنٹروں سے خوب مار رہے تھے۔ وہ غریب چیخ چیخ کر دعائیں دے رہے تھے کہ ان پر یہ ظلم نہ کیا جائے مگر مارنے والوں پر ان کی دعاؤں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ رحمت اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ وہاں موجود تھا اور یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بونا یہ منظر دیکھ کر فوراً اپنے گھوڑے سے اترا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا رحمت کے قریب پہنچ گیا۔ رحمت نے اسے دیکھا تو بولا، اور بونے تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ یہاں سے چلا جا ورنہ لوگوں کے پاؤں کے تلے کچل کر مارا جائے گا۔ بونا اپنی باریک سی آواز میں بولا، تم ان غریبوں پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو اپنی راہ لے، تجھے اس سے کیا؟ یہ لوگ میرے مقروض ہیں اور اصل رقم تو ایک طرف رہی، سود کے پیسے بھی نہیں دے رہے، اس لیے میرے ملازم انہیں سزا دے رہے ہیں۔ تو انہیں اگر میرے کام میں مداخلت کی تو اپنے آدمیوں سے کہہ کر تیری بھی پٹوائی لگوا دوں گا۔ اس رئیس آدمی نے بڑے تکبر سے کہا۔ یہ سن کر بونا مسکرایا اور بولا، تم مجھے جانتے نہیں، اگر تم مجھے جانتے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ رحمت نے کہا، کیوں نہیں جانتا؟ تم 42 بھر کے ایک بونے ہو، میں چاہوں تو تمہیں یہیں کھڑے کھڑے کانوں سے پکڑ کر پھینکوں تو سیدھے دریا میں جا گرو گے۔ اس کی بات ختم ہوئی تو بونے نے اپنی کمر میں بندھی چھوٹی سی چھری نکالی اور اس سے رحمت کے 5 سالہ بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بچہ فضا میں بلند ہوا اور زمین سے کچھ اوپر جا کر ہوا میں کھڑا ہو گیا۔ اس اچانک آفت سے بچہ خوف زدہ ہو گیا اور مارے ڈر کے زور زور سے رونے لگا۔ رحمت نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ زور سے چلایا،
بدماش बौने, तो तुम मुझे कोई जादूगर मालूम दिखाई देता है। मेरे बेटे को नीचे उतार दे वरना बहुत बुरा हशर करूंगा। यह कहकर उसने अपने कारिंदों को इशारा किया। उसके कारिंदों के दिल पर बौने की दहशत सवार हो गई थी। वो अपनी जगह से टस से मस न हुए, बल्कि उन्होंने अपने हंटर भी ज़मीन पर फेंक दिए। उनमें से एक ने कहा, यह बौने कोई जादूगर है, हम तुम्हारे कहने से उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसने गुस्से में आकर हमें कुत्ता बिल्ली बना दिया तो हम क्या करेंगे। उस गांव के बच्चे बहुत बदमाश हैं, कुत्ते बिल्लियों को देखकर उन्हें पत्थर मारने लग जाते हैं। ठीक है हरामखोर, मैं ही उसका कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर रहमत बौने पर झपटा, मगर यह क्या, अभी वो उसके नज़दीक भी नहीं पहुँचा था कि बौने ने छरी का रुख उसकी तरफ करके उसे हल्के से घुमाया। रहमत किसी गुब्बारे के मानिंद फिजा में बुलंद हुआ और अपने बेटे के नज़दीक जाकर रुक गया। उसका बेटा उससे चिमट गया और पहले से भी ज़्यादा चीख मार मार कर रोने लगा। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें ज़मीन से इतनी बुलंदी पर देखा तो आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से उन्हें देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बौना कोई जादूगर है और उस जालिम और लालची इंसान को सज़ा देने के लिए उसने यह सब कुछ किया है। बौने ने अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, ओह लालची इंसान, अब तू यूं ही ऊपर टंगा रह। तूने उस गांव के मजबूर और बेकस लोगों पर बड़ा जुल्म किया है, तेरी यही सज़ा है। मैं तो अब चलता हूँ, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, मज़े से उसका लुत्फ़ उठाना। रहमत ने यह सुना तो वो गिड़गिड़ाने लगा, अच्छे बौने, तुम शक्ल व सूरत से तो एक नेक दिल बौने लगते हो, फिर मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। ठंड बहुत है, अगर बारिश भी शुरू हो गई तो मेरा और मेरे बेटे का बुरा हाल हो जाएगा। बौना बोला, ये जुल्म नहीं, तुम्हारे किए की ही सज़ा है। तुमने थोड़ी थोड़ी रकमें कर्ज देकर जिंदगी भर के लिए गांव के बहुत से मासूम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। वो कर्ज से कहीं ज़्यादा रकम तुम्हें सूद के शक्ल में दे चुके हैं, मगर तुम उनकी जान ही नहीं छोड़ रहे। तुम्हारा बच्चा तो छोटा और मासूम है, इसलिए मैं उसे नीचे उतार देता हूँ, मगर तुम यूं ही लटके रहो। बौने ने यह कहकर अपने जादू की छड़ी को फिर हरकत दी और फिर रहमत का बेटा धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आने लगा। उसके पाँव ज़मीन से लगे तो वो अम्मी अम्मी कहता हुआ सीधा अपनी हवेली की तरफ भाग गया। रहमत फिजा में बेबसी से बौने को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे नीचे उतार दो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर ऐश करोगे। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो तुमने गरीबों का खून चूसकर और उनकी बद्दुआएं लेकर जमा किए हैं। तुम बहुत लालची हो और गांव के ज़रूरतमंदों को सूद पर कर्ज देकर उनसे इतने ज़्यादा सूद लेते हो कि असल रकम ज़िंदगी भर जूं की तूं रहती है और वो उसका सूद उतारते उतारते हलकान हो जाते हैं। अपनी गुर्बत की वजह से जब वो तुम्हें रकम नहीं देते तो तुम अपने बदमाश मुलाजिमों से उनकी सजाएं दिलवाते हो। यह कहते कहते बौने ने ज़मीन पर पड़े हंटरों की तरफ देखा और छड़ी से इशारा किया। सारे हंटरें ज़मीन पर से उठे और रहमत के उन कारिंदों पर बरसने लगे जो कुछ देर पहले गरीब और बेकसूर लोगों को मार रहे थे। उनकी दर्दनाक चीखें फिजा में बुलंद होने लगी। करीब खड़े लोग हैरत भरी नज़रों से यह सब कुछ देख रहे थे। वो बहुत खुश थे और बौने को दुआएं दे रहे थे। जब हंटरों से मार खा खा कर वो लोग अधमरे हो गए तो हंटरों ने रहमत की तरफ रुख कर लिया और ऊपर जाकर उसकी खूब पिटाई शुरू कर दी। रहमत ने तो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाई थी, अब जो उसकी इतनी पिटाई हुई तो वो चीख चीख कर रोने लगा। सारे गांव वाले उसकी यह हालत देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। इतने में रहमत की बीवी भागती हुई आई और बौने के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे शौहर पर इतना जुल्म मत करो, इसे कुछ हो गया तो फिर गांव के गरीब लोगों को कर्ज कौन देगा। अच्छा है उसे कुछ हो जाए, वैसे भी कर्ज लेना कोई अच्छा काम तो नहीं। मैं फिलिस्तीन में रहता हूँ, वहाँ के लोग दूसरों से कर्ज लेने को बहुत बुरा समझते हैं। वो इतनी मेहनत से अपना काम करते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत के खूब पैसे मिलते हैं। उस गांव में जब कोई कर्ज देने वाला न होगा तो लोगों को उस तरीके से रकम हासिल करने की उम्मीद भी नहीं होगी, इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाने लगेंगे। जब उन्हें एहसास हो गया कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है तो वो फजूल खर्चियों से भी बचेंगे, गैर ज़रूरी रस्मों और तकरीबों पर भी पैसा ज़ाय नहीं करेंगे।
ताकि मेहनत से हासिल किए हुए उनके पैसे जायज़ कामों के लिए महफूज रहेंगे और वक्त पड़ने पर उन्हें किसी के आगे हाथ भी न फैलाना पड़े। गांव के वो लोग जिन्होंने रहमत से सूद पर रकम कर्ज ली थी, यह सुनकर शर्मिंदा हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि अगर वो बेकार बैठकर वक्त ज़ाय न करे और मुसलसल मेहनत में लगे रहे तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत न पड़ती। उन्होंने अपने दिल में अहद कर लिया कि अब वो मेहनत से अपनी रोज़ी कमाया करेंगे और ज़िंदगी में कभी कर्ज नहीं लेंगे। रहमत की बीबी बड़ी बेबसी से अपने शौहर को देख रही थी। रहमत ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मैं वादा करता हूँ कि गांव वालों की वो सारी रकम जो मैंने अब तक सूद के तौर पर ली है उन्हें वापस कर दूंगा। मैं उनका कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और अगर उन्हें कभी रकम की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें कर्ज नहीं बल्कि उधार दे दिया करूंगा और उस पर ज़रा सा भी सूद नहीं लूँगा। अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि सूद हराम होता है। मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। अब मैं सूद वाला काम छोड़कर खेती बाड़ी करके हलाल रोज़ी कमाया करूँगा। बौने ने जब देखा कि वो जालिम और लालची आदमी राह रास्त पर आ गया है तो उसने अपने जादू की छड़ी के इशारे से वापस उसे ज़मीन पर उतार लिया। रहमत उस वक्त भागता भागता घर गया और उन तमाम लोगों के पैसे जो उसने नाजायज़ तरीके से लिए थे उन्हें वापस कर दिए। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने बौने का शुक्रिया अदा किया। गांव में एक छोटी सी साफ़ सुथरी खूबसूरत सराय थी। बौना उस सराय में चला गया। जब बारिश का मौसम ख़त्म हुआ तो बौना भी गांव वालों को खुदा हाफिज कहकर पुरिस्तान रवाना हो गया जहां पर उसका घर था। उसके जाने से सब गांव वाले उदास हो गए थे। वो दिन और आज का दिन उस गांव के किसी आदमी ने अपनी ज़रूरत के लिए कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। वो लोग ज़्यादा मेहनत से अपना काम काज करने लगे। उसी की वजह से उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे जिससे वो लोग खुशहाल हो गए और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने लगे। मेरे मोहतरम नाज़रीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।